Very good morning, students. Welcome to e-learning classes of business of accountancy. Today in this lecture, I am going to cover some more topics and accounting terminology of chapter 2, that is basic accounting term. In my last lecture, I have explained you current assets, non-current assets, fictitious assets, capital receipt, revenue receipt, capital expenditure and revenue expenditure. Now in this lecture, I am going to explain you purchase. What is purchase, beta? It refers to the amount of goods which are bought for resale or for the amount of raw materials that are used in the प्रोडक्शन प्रोसेस. इट इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेज ऑफ द गुड्स. परचेज क्या होता है बेटा? वो अमाउंट जो हम परचेज करते हैं फॉर रीसेल या हम जो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं फॉर द यूज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड purchase. It includes both cash and credit purchase. Purchase return, when goods are returned to the supplier for any reason, it is called as purchase return or return outward. बेटा जब आप गुड्स को परचेज करते हैं और परचेज करने में आपको कुछ ऐसी डिफॉल्ट रखता है गुड में और यू आर रिटर्निंग दैट गुड टू द सप्लायर, देन दिस इज कॉल्ड परचेज रिटर्न. इसे हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं. Now, 16th term is sales. Sales refers to the amount of goods sold that have already been bought or manufactured by the business. It includes both cash and credit sale of goods. Sales बेटा क्या होता है? वो amount of goods that have been sold in the market, जिसको मैन्युफैक्चर करा है बिजनेसमैन ने और उसको मार्केट में सेल कर रहा है, दैट इज नोन एज कैश. दैट इज नॉन एज सेल. और सेल बेटा कैश में भी होती है और क्रेडिट में भी होती है. सेल्स रिटर्न, व्हेन गुड्स आर रिटर्न फ्रॉम द कस्टमर फॉर एनी रीजन, इट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न. और जब आप गुड्स को सोल्ड करते हैं और कस्टमर उससे सेटिस्फाइड नहीं होता है एंड द कस्टमर रिटर्न द गुड्स फॉर ड्यू टू एनी रीजन, दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न. इट इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड. नाउ सी नेक्स्ट बेटा स्टॉक. Stock or inventory is the tangible asset that is held by the business for the purpose of sale in normal course of business or for the purpose of using it in production of goods meant for sale. देखो बेटा स्टॉक और इन्वेंट्री वो होती है जो आप ये वो टेंजिबल एसेट्स हैं जो हम बिजनेस में रखते हैं जिससे हम फ्यूचर में नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में सेल करते हैं. और या फिर आपका वो स्टॉक विच इज इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल विच इज देयर इन द बिजनेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ठीक है, गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए जो रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं जिसको हम स्टॉक में रखते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टॉक और इन्वेंट्री. ये फिनिश गुड्स की भी होती है विच इज मेंट फॉर सेल इन द मार्केट. ये रॉ मटेरियल की भी होती है विच इज देयर इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन पर्पस, for the purpose of production only. It includes goods unsold on a particular date. इसको हम goods unsold भी बोलते हैं on a particular date. It may be opening or closing stock. The goods unsold in the beginning of an accounting period is called opening stock. वो goods जो beginning of accounting period में unsold रह गया, that is called opening stock. And the goods which are unsold at the end of accounting period, during the end of the year, जो goods आपके unsold रह जाते हैं, which are not sold in the market, that unsold goods are known as closing stock. और यही closing stock next year के लिए आपका opening stock हो जाता है. Now see next, that is trade receivable. Trade receivable, it is the amount that is receivable for sale of goods and or services rendered in the ordinary course of business. Trade receivable is that amount which will receive in future on sale of goods or of providing services. Trade receivable बेटा वो amount है जो आपको मिलना है from goods sold और for providing services. उसके बदले में जो payment मिलता है आपको in future, it is called trade receivable. It is a sum total of debtors and bills receivable. और ये debtors और bills receivable का sum total होता है. Debtors क्या होते हैं बेटा? Debtors includes a person who receives a benefit without paying money immediately but liable to pay in future. Debtors वो हैं जो आपकी गुड्स को परचेज करते हैं, जिसको आप गुड्स सोल्ड करते हैं ऑन क्रेडिट बेसिस और वो पेमेंट आपको उस समय नहीं देते हैं लेकिन फ्यूचर में लायबल है पेमेंट देने के लिए. दे आर नोन एज डेटर्स. ही ओव्स एन अमाउंट टू बिजनेस अगेंस्ट क्रेडिट सेल. और डेटर्स के पास क्रेडिट सेल के लिए अमाउंट रहती है, आप उनको क्रेडिट में गुड्स को सोल्ड करते हैं और वो उसका फ्यूचर में पेमेंट करते हैं. दे आर नोन एज डेटर्स ऑफ द बिजनेस. Then bills receivable beta, it is the amount of bill of exchange accepted by a debtor, specifying the amount of which will be received on the specific date from him by the business. बेटा डेटर्स जो होते हैं, डेटर्स को कंपनी या फर्म जो है गुड्स को क्रेडिट बेसिस पे सोल्ड करती है, तो वो डॉक्यूमेंट वो प्रूफ जिसमें ये मेंशन होता है कि कितनी अमाउंट का गुड सोल्ड करा है और किस पर्टिकुलर डेट में पेमेंट मिलना है डेटर से, दैट बिल और दैट रिसिप्ट इज नोन एज ट्रेड रिसिप्ट. ट्रेड रिसेबल वो डॉक्यूमेंट है जो बायर और सेलर के बीच में होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑन क्रेडिट बेसिस. इसमें आपका डेट ऑफ पेमेंट और अमाउंट ऑफ गुड सोल्ड मेंशन होता है. नाउ सी नेक्स्ट बेटा,
that is trade payable. It is the amount payable for purchase of goods and or services taken in ordinary course of business. जब हम goods को purchase करते हैं या services render करते हैं, उसके बदले में जो हमें payment मिलने वाला होता है, that is known as trade payable. जिसके बदले में payment देना होता है, it is known as trade payable. In other words, it is the sum total of creditors and bill payable. और trade payable sum total है creditors और bills payable का बेटा. क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर इज अ पर्सन हु गिव्स अ बेनिफिट विदाउट रिसीविंग मनी इमिडिएटली बट टू क्लेम इट इन फ्यूचर. क्रेडिटर्स वो पर्सन है जो आपको गुड्स को देते हैं या आपको बेनिफिट देते हैं विदाउट रिसीविंग मनी, लेकिन उसको पेमेंट आपको इन फ्यूचर में करना होता है. क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जो बिजनेस को ओव करते हैं, मीन्स उनका क्रेडिट गुड्स जब हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं और पेबल होते हैं टू द अमाउंट इन फ्यूचर, दे आर नोन एज क्रेडिटर्स. Bills payable, it is the amount of bill of exchange accepted by the person or enterprise, the amount of which will be payable on the specified date. Bills payable वो हैं जो हम फ्यूचर में पेमेंट करते हैं, और बिल्स के लिए तो उसका जो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये रिटर्न होता है कि कितनी अमाउंट का पेमेंट हमें फ्यूचर में करना है, इट इज नोन एज बिल्स पेबल. नेक्स्ट इज बेटा कॉस्ट. It is the amount incurred on or attributable to a specified item or activity in the business. Cost is the amount incurred for production of any goods. Voucher. A voucher is a written document in support of a particular transaction. It includes cash memo as given by the seller for cash purchase, invoice given for credit purchase and received receipt for making cash payment. देखो वाउचर वो रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए होता है. इसमें आपका कैश मेमो आता है जो कैश परचेज पे सेलर देता है. इसमें इनवाइस आती है जो आप क्रेडिट परचेज पे लेते हैं, और इसमें वो रिसिप्ट भी आती है जो कैश पेमेंट पे ली जाती है. ठीक है, तो ये वाउचर, कॉस्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, ये सब आपके वो टर्म्स हैं जो बिजनेस में नॉर्मली यूज होते हैं. रिमेनिंग टर्म्स आई विल एक्सप्लेन यू इन माय लास्ट नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे.